Good morning, students. Hope you will be fine. In the running topic of sexual reproduction in flowering plant, today I am going to discuss microsporogenesis in sexual reproduction. I am going to discuss microsporogenesis. Yesterday we have discussed before microsporogenesis. Today we will study about the microsporogenesis. The process of the formation and differentiation of microspore, also known as pollen grain, from microspore mother cell is called microsporogenesis. Microsporogenesis. And the most important thing of the microsporogenesis is that these pollen grains, which shows the male reproductive organ of the plant, we can study microsporogenesis under the following heads. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हम निम्न हेडिंगों के अंदर सबसे पहला द फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर. Structure of anther, and the second one is development of anther. Development of anther and formation of pollen and formation of pollen grain and development of male gametophyte. Development of male gametophyte. And the next one is pre-pollination development. Pre-pollination development. And the last one is post-pollination development. These are the headings through which we will study about the microsporogenesis. The first one is structure of the anther, and the second one is development of anther and the formation of pollen grain. And the third one is development of male gametophyte, and the fourth one is pre-pollination development. Pre-pollination development, and the last stage is post-pollination development. So let's see. The first one is structure of anther.
Now let's see structure of anther. The fertile portion of anther, the fertile portion of stamen का जो fertile portion होता है उसको हम क्या कहते हैं? That's called anther. It is fertile portion of stamen means male part. That's called anther. And such anther is usually made up of two lobes. ये जो anther होते हैं, these are made up of two lobes connected by a. You can see connected by a connective. ये connective के द्वारा जोड़े रहते हैं internal. In turn, each lobe contains chambers that is connected, and each lobe contains chambers represents microsporangium. ये जो चैम्बर बनाते हैं उसके अंदर उसको क्या कहते हैं? That's called microsporangium. You can see in the figure these lobes are connected to this connective, and the चैम्बर्स होते हैं उनके अंदर क्या भरे रहते हैं? माइक्रोस्पोर भरे रहते हैं, जिनको हम पॉलन ग्रेन भी कहते हैं. इसकी जो ये पैराइडल सेल्स होती है, जो सबसे आउटर मोस्ट सेल है, इसको कहेंगे आप एपिडर्मिस, एंड द इनरमोस्ट टू एपिडर्मिस मींस दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मैच्योर diathecous anther. This is the transfer section of diathecous anther. तो सबसे आउटर मोस्ट जो वॉल है उसको हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं. एंड द इनर टू एपिडर्मिस देयर इज एंडोथीशियम. देयर इज एंडोथीशियम, and inner to endothelium there are 3 to 4 walls. 3 to 4 layers or walls are of middle layer, and inner to this middle layer there is a nutritive covering that's called tapetum. Now let's see what is the function of this pollen sacs forms these 4 walls or layers. The first one is epidermis, second one is endothelium, third one is middle layer, and the fourth one is tapetum. Epidermis is the outermost layer, also known as, or outermost covering, also known as exothelium. And inner to epidermis there is another layer that's known as endothelium. और endothelium का जो फंक्शन होता है, ये कैसी होती है? रेडियली इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, और इनका जो फंक्शन होता है, इनकी जो थिकनिंग होती है वो सेलुलोज और लिग्निन की बनी होती है. दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज और लिग्निन. दीज सेल्स आर ए फ्यू सेल्स विदाउट, इनके अंदर कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो विदाउट थिकनिंग होती हैं, एंड आर ऑल्सो प्रेजेंट.
these thin walled cells collectively form स्टोमियम, यानी ये जो फॉर्म है इसको हम क्या कहते हैं, स्टोमियम। ये कैसी होती है, स्टोमियम सेल्स होती हैं। एंड इनर टू एंडोथीशियम देयर इज ए मिडिल लेयर। मिडिल लेयर ये क्या होती है, 3 to 4 लेयर्स। मिडिल लेयर आर ऑफ 3 to 4 लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स सिचुएटेड जस्ट बिलो द एंडोथीशियम, बिल्कुल एंडोथीशियम के नीचे होती है। एंड दीज सेल्स ऑफ दिस लेयर आर एपीमेरल एंड डिजेनरेटेड टू प्रोवाइड नरिशमेंट। ये क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं नरिशमेंट टू द ग्रोइंग माइक्रोस्पोर मदर सेल। अभी इसको हम ऐसे ही क्या कर देते हैं, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं डायग्राम को। This is the last one, that's called tapetum. अब यहाँ क्या रह जाते हैं, यहाँ अंदर जो वॉल्स आती हैं उनके अंदर क्या मिलेंगे आपको, माइक्रोस्पोर अंदर इस तरीके से। ये उनके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, उनके अंदर क्या बने रहते हैं, pollen grain, और these are called pollen grain. And the last one layer is of the tapetum. It is the innermost layer of the wall, and the cells of tapetum is multinucleated and polyploid. Tapetum cells provide these cells are nutritive. They provide nutrition to the pollen grain, and they secrete produce or secrete enzymes, indole acetic acid and food materials. ये जो सेल्स होती है न्यूट्रिटिव सेल्स को हम कहते हैं, और ये क्या क्या सीक्रेट करती है, एंजाइम सीक्रेट करती है, फूड मटेरियल्स क्या करती है, सीक्रेट करती है, और इंडोल एसिटिक एसिड को भी ये सीक्रेट करती है। नाउ दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंथर। नाउ सेकंड वन इज डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड फॉर्मेशन ऑफ pollen grain। सेकंड टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड फॉर्मेशन ऑफ pollen grain। ये डायग्राम है, दिस डायग्राम शोज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ए मैच्योर डाइथिकस एंथर। एंथर के शो कर रहा है। Now second one is development of anther and formation of pollen grain. The young anther, जो young anther होता है, consists of homogeneous mass of parenchymatous cells. यंग एंथर होता है, उसके पास मिलकर के बना होता है पेरेंकाइमेटस सेल्स का, सराउंडेड बाय द एपिडर्मिस, जिसके चारों तरफ क्या होती है, एपिडर्मिस रहती है। एंड इट सून बिकम्स 4 lobed। ये कैसा हो जाता है, 4 lobed, 4 लोब का हो जाता है। एंड इन ईच ऑफ द 4 lobes some of the hypodermal cells, चारों लोब जो होते हैं उनके अंदर कुछ हाइपोडर्मल सेल्स बननी शुरू हो जाती हैं, टू एक्ट एज आर्कीस्पोरियल इनिशियल्स। और वो मिलकर के जो हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं वो क्या बनाती हैं, आर्कीस्पोरियल इनिशियल्स बनाती हैं। एंड ईच आर्कीस्पोरियल इनिशियल्स डिवाइड इनटू एन
outer primary parietal cells and an inner primary sporogenous cell. इसके अंदर से दो सेल डिवाइड करती हैं. आउटर सेल्स जो होती है वो पैराइटल सेल्स होती हैं, ठीक है जी, और इनर सेल्स होती हैं वो स्पोरोजीनस सेल्स होती हैं. एंड जो आउटर मोस्ट यानी प्राइमरी पैराइटल सेल्स डिवाइड टू फॉर्म 3 to 5 वॉल लेयर्स. वो 3 से 5 वॉल लेयर के अंदर डिवाइड कर जाती हैं. कौन कौन सी लेयर थी अभी हमने देखी. पहला एपिडर्मिस के इनर में यदि जाए तो एंडोथीशियम था, एंडोथीशियम के इनर में मिडिल लेयर, एंड मिडिल लेयर के इनर में था आपका टैपिटम. ठीक है जी. These primary sporogenous cells divide to produce a mass of sporogenous cells और microspore. ये जो सेल्स होती हैं यही क्या बनाती हैं, माइक्रोस्पोर बनाती हैं, जिनको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं. ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड्स माइटोटिकली. ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है. दैट्स क्रूशियल और वेरी इंपॉर्टेंट. माइटोटिकली डिवाइड करता है और किसके अंदर क्या बनाता है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर. इसकी फॉर्मेशन होती है हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन, और इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन. इसी को हम पॉलन ग्रेन कहते हैं. और पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन, ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो दे आर रिमेन्स अनचेंज्ड इन टेट्राइड्स एंड द अरेंजमेंट ऑफ टेट्राइड्स कैन बी टेट्राहेड्रल. जो अरेंजमेंट होता है इसके अंदर ये टेट्राहेड्रल होता है, आइसोबाइलेटरल होता है, लिनियर होता है, टी शेप के अंदर होता है और डेसिक्वेट टाइप का होता है. ठीक है, तो ये रहा आपका डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन. एंथर डेवलप करके क्या बनाता है, पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन करता है. किसके थ्रू, पॉलन किसके, माइक्रोस्पोर मदर सेल के थ्रू. एंड थर्ड वन इज डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किससे होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, दिस टर्म इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो गैमेटोजेनेसिस. दिस इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो गैमेटोजेनेसिस. माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होती हैं, पॉलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट. ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं, दीज आर द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट. और कैसे होते हैं, इट इज यूनिसेलुलर एंड हैप्लॉइड. यूनिसेलुलर होते हैं और हैप्लॉइड होते हैं. एंड दीज शेप वेराइज फ्रॉम ओवल टू पॉलीहेड्रल. इसकी जो शेप होती है वो अंडाकार से लेकर के और बहुभुजाकार पॉलीहेड्रल तक होती है. एंड द वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, आउटर एक्साइन एंड इनर इंटाइन. एक्साइन और इंटाइन ये 2 लेयर होती हैं. एंड द एक्साइन, द आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन एंड इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन. स्पोरोपोलेनिन ये आउटर लेयर होती है और इसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है. एंड कैसी होती है, इट इज थिक एंड ऑर्नामेंटेड. कैसी होती है, थिक होती है और ऑर्नामेंटेड होती है. एंड इसको हम 3 भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट लेयर होती है उसको कहते हैं इनर कंटिन्यूअस फूट लेयर. इनर कंटिन्यूअस फूट लेयर. आउटर मोस्ट लेयर एक्साइन की जो पहली लेयर होती है वो इनर कंटिन्यूअस फूट लेयर होती है. एंड द सेकेंड वन इज मिडल डिसकंटिन्यूअस. middle discontinuous baculate layer. And the third one is outer discontinuous
is continuous tectum. These are the layers of एक्साइन. ये एक्साइन की क्या होती हैं? लेयर्स होती हैं. यहां आप इसको देख सकते हैं. Now after that the innermost layer is intine. और इंटाइन, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, दिस स्पोरोपोलिन, ये जो स्पोरोपोलिन होता है ये रेजिस्टेंट होता है टू फिजिकल एंड बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन. इसके ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है. सो पॉलन वॉल कभी कभी क्या होती है, पॉलन वॉल प्रिजर्व रहती है फॉर ए लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक प्रिजर्व रहती है इन फॉसिल्स डिपॉजिट्स, फॉसिल्स डिपॉजिट के अंदर. एंड द इनर जो इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर लेयर होती है, दैट्स कॉल्ड इंटाइन. ये थिन होती है, डेलिकेट होती है एंड इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टोज. सेलुलोज और पैक्टोज की बनी होती है. सेलुलोज एंड पैक्टोज इसकी बनी होती है. एंड इन इंसेक्ट, कीटों के अंदर पॉलिनेटेड फ्लावर्स, द एक्साइन, जो एक्साइन वॉल है ऑफ पॉलन ग्रेन इज कवर्ड विद ए येलोइश viscous and sticky substance called pollen kit. ये जो एक्साइन होती है ये येलोइश स्टिकी सब्सटेंस के द्वारा कवर्ड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलन किट कहते हैं. इट इज चीफली मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड कैरोटेनॉइड्स. ये लिपिड और कैरोटेनॉइड से मिलकर के बना होता है. द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस. ठीक है जी, पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट को ही हम क्या कहते हैं, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज द प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट. क्या होता है प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट में, उसको भी देखते हैं. नाउ प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट मीन्स पॉलिनेशन के पहले जब माइक्रोस्पोर डेवलप हो गए हैं तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं. माइक्रोस्पोर यहां क्या करता है, डिवाइड करना शुरू हो जाता है. माइक्रोस्पोर स्टार्ट जर्मिनेटिंग इन स्टू. माइक्रोस्पोर के अंदर ही, अंदर की तरफ ही, इन स्टू मींस इनर साइड, क्या हो जाता है, जर्मिनेशन शुरू हो जाता है. एंड दिस जर्मिनेशन इज कॉल्ड प्रीकॉशियस. इस जर्मिनेशन को क्या कहते हैं, प्रीकॉशियस जर्मिनेशन कहते हैं. एंड माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस डिवाइड्स. ये जो माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस होता है ये माइटोटिकली डिवाइड करता है टू फॉर्म ए स्मॉलर जेनरेटिव सेल. यहां पर क्या बनती है, पहले एक जेनरेटिव सेल बनती है, जेनरेटिव सेल. एंड दिस जेनरेटिव सेल लाइंग नेक्स्ट टू स्पोर वॉल. ये किसके बाद होती है, जस्ट स्पोर वॉल के बाद ही होती है. एंड ए मच लार्जर वेजिटेटिव सेल. और दूसरी जो होती है वेजिटेटिव सेल होती है, जेनरेटिव एंड वेजिटेटिव सेल. एंड द पॉलन ग्रेन्स आर शेड. यहां से पॉलन ग्रेन क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं. शेड फ्रॉम द एंथर एट दिस बाई सेल स्टेज. किसी किसी के अंदर कभी कभी क्या होती है, ये बाई सेल ना होकर के क्या होती है, 3 सेल स्टेज भी बनती है. दिस इज द प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट. नाउ पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट. आफ्टर द शेडिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन, जो लिबरेटेड पॉलन ग्रेन होते हैं, दे आर ट्रांसफर टू द रिसेप्टिव सरफेस. कहां पहुंचते हैं, स्टिग्मा के पास. लिबरेटेड पॉलन ग्रेन जो पहुंचते हैं वो, उनके लिए स्टिग्मा एक रिसेप्टर की भांति काम करता है ऑफ द कार्पल मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द दिस प्रोसेस कॉल्ड. जब यहां से करी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर को कहां से, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट्स कॉल्ड पॉलिनेशन. इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं. अब कहां
स्टिग्मा के ऊपर। यहाँ क्या होता है, यहाँ डिवीजन शुरू हो जाता है जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के टच में आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा से वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और फूल जाता है। फूलने के बाद यहाँ पर क्या बनती है, पॉलन ट्यूब्स बनती हैं। ठीक है जी, पॉलन ट्यूब्स बनती है एंड यही पॉलन ट्यूब्स आगे ग्रो करके क्या बनाती हैं, अगला जो स्टेप आता है आपका वो होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। दिस इज ऑल ओवर अबाउट द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका मेगास्पोरोजेनेसिस, मींस फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, यही जो डायग्राम आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं मेंशनली, इनको आपने यहाँ ड्रॉ करना है। और इससे रिलेटेड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।